was theoretical in nature. 90% questions were theoretical in nature, conceptual in nature, so no need to focus that. So hello my friends, I hope you all are doing very good and everybody is ready for the CUET PG 2023. And as you can see the topic specifically, today we are going to talk about CUET PG 2023 economics entrance. Yes, so let's get started. तो चलिए हम शुरू करते हैं अब कैसे तैयारी किया जाए CUET PG 2023 के लिए. To be very specific, many people have watched my video. If you have not just watched my video, go to the YouTube and just search CUET PG Economics 2022 Navneet. Just you will get a video, and around 6-7,000 people have already watched that video. I have uploaded in 2022. So still that video is relevant, and right now we are going to talk about CUET 2023, in which we will be mainly focusing on how to get into DSE, that is Delhi School of Economics, JNU Jawaharlal Nehru University, HCU Hyderabad Central University, or UOH, BHU Banaras Hindu University, and PU, that is Pondicherry University. These are 5-6 good institutions where you will get good amount of packages in the masters in economics, or you will have great opportunity to explore the Indian Economic Services, RBI, Grade B, like SEBI, so many things, PhD, NET JRF, foreign from economics. So basically going into deep, let me categorize. Video will be mainly on 3 topics. These topics will be, first of all will be how to start. First of all, how to start, what to start, and when to start. This is the first thing, in which we will be mainly talking कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, प्रिपरेशन का स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि 4 months are left, just 4 months are left. And in next phase we will be mainly talking about the books. What are the books that has to be kept in your mind while preparing for CUET PG 23 economics entrance. And third thing will be कि क्या पास्ट ईयर का क्या रोल है, क्या DSE के आ जाने से कैसे ये अफेक्ट करेगा, हाउ DSE will be affecting the nature of question paper. So many things will be clarified, and after this video I don't think you will be required any kind of video to prepare for CUET economics. No need. I will be clarifying each and everything. So guys, please do watch till end, and given below there is a Telegram group for CUET PG entrance examination for economics, specifically economics discussion group. There is, just join the Telegram link, where you will be provided free PDF books of all relevant, which is going to be important for the 22. तो आप ज्वाइन कर लेंगे. Just go to the media section. The moment you will go to the media section of the Telegram, you will find all the PDF books, और फाइल सेक्शन में. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम. विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन 10 मिनट्स. तो हार्डली ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है. प्लीज़ इसको आप पेशेंटली शुरू करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल CUET का अप्रोच क्या रखा जाए. तो CUET के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली 5 थीम्स को पकड़ना है. What are the important syllabus? First, let us start about the syllabus and what are the things that is going to come in the exam. Syllabus आप लोग टेलीग्राम पे अपलोडेड है, इसी ग्रुप में जाएंगे. जस्ट ज्वाइन द ग्रुप, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, और सम ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी सेंड द ग्रुप. जस्ट यू फॉलो दैट syllabus. Nothing else is asked in the examination. And in 2002 I have given specific screenshot. Here you can see that screenshot I have given. This I have noted down. These are the mainly topics from where question were asked in CUET 2022. So need to focus on this, and question are mainly theoretical in nature. Yes, in 22 it was theoretical in nature. 90% questions were theoretical in nature, conceptual in nature. So no need to focus that much mathematical like DSE, ISI and other institutes used to focus. हाँ, अब DSE के आ जाने से क्या होगा, पीपल हु वर ड्रीमिंग ऑफ ओनली JNU, BHU, HCU वगैरह, नाउ दे कैन ऑल्सो ड्रीम ऑफ DSE, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ योर रैंकिंग्स आर वेरी गुड. एंड नो नीड टू पैनिक. हम लोग DSE पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हाउ DSE इज ए मिथ, क्योंकि आप उसमें चले तो जाओगे बट सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट है. गेटिंग इनटू DSE वुड बी ईजियर फ्रॉम दिस ईयर, बट सर्वाइविंग इनटू DSE इज डिफरेंट, बिकॉज मास्टर्स का जो कोर्स है दैट हैव नॉट चेंज्ड. एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ CUET. सो विल कम विद द स्पेसिफिक वीडियो. सो प्लीज़ डोंट फोकस राइट नो ओनली DSE. DSE का स्पेशल प्रिपरेशन अब नहीं होगा, दैट इज फॉर वेरी श्योर. नाउ प्रिपरेशन विल बी थ्रू CUET मोड. सो चलो लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंसिव थिंग. First of all, you have to categorize economics into 5 to 6 topics. Major themes are like this: microeconomics, MICRO, micro,
एंड विल बी ऑल्सो डीलिंग विद द बुक्स विच आर द बुक्स इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले होगा, फिर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, MA मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर प्लीज़ कीप नोटिंग गाइस, जस्ट कीप नोटिंग। I have been mentoring economics students for last 3 years, so I have wide spectrum of knowledge how to deal with the CUET entrance examination for PG Economics 23. हाँ, first is microeconomics, second is macroeconomics, third is growth and development, yes, growth and development, fourth is Indian economy, very very important, Indian economy along with public finance. Public finance has very little scope in entrance, so you can read it with the public finance. Even in the public finance, mainly Indian public finance are asked, so no need to worry about. Okay, so Indian economics or Indian public finance you can read it. Then comes international economics, so altogether 5 happened. उसके बाद क्या होगा, then you have to go for statistics and mathematics together, hardly 5 to 10 questions are coming for last few years. पहले भी CUET हुआ करती थी, it was CET that used to conduct exam for different 8 to 10 universities. So पैटर्न का जो एग्जाम पैटर्न है स्टिल सेम है। फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन यू विल बी गिवन 4 मार्क्स, फॉर 1 रॉन्ग क्वेश्चन -1 मार्क्स यू विल बी पनिश्ड, राइट। और पार्ट ए में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट, यह मेनली पार्ट बी का वीडियो है। पार्ट बी इज़ मेनली फॉर इकोनॉमिक्स। पार्ट ए के मार्क्स जो है JNU वगैरह इंक्लूड नहीं करेगी, आई होप DSE भी शायद इंक्लूड नहीं करेगी, बट रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी पार्ट ए को इंक्लूड कर रही है, तो पार्ट ए का वीडियो अलग से आएगा। पार्ट ए 25 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 25 मार्क्स यू नीड टू जस्ट गिव ए बैलेंसिंग, आई मीन वर्क ऑन दैट, एटलीस्ट 10 to 15 अगर आप करेक्ट कर पा रहे हैं आउट ऑफ 25, इट इज़ वेरी गुड स्कोर, ऑलमोस्ट एन एवरेज स्कोर। एंड रेस्ट ऑफ द 75 क्वेश्चंस में आप टारगेट रखो कि 50-60 तक हम कर सकें। चलो, तो यह हो गया 5 टॉपिक। नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द बुक्स दैट हैज़ टू बी फॉलोड। सी, दिस इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल, दैट इज ऑल इंडिया एग्जाम, पैन एग्जाम। So exam has to be very inclusive in nature, syllabus should be very यूनिफॉर्म इन नेचर, सो दैट कि जो गली नुक्कड़ के लोग हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, गांव के लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, दैट सो दैट इवन विलेज पीपल कैन क्रैक द एग्जाम, यू नीड टू फॉलो इंडियन राइटर बुक्स। आई विल बी डीलिंग फॉरेन राइटर्स के भी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ बुक्स आर देयर। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज़ नोट इट डाउन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको सबसे पहले HL आहूजा उठाना है, और HL आहूजा का जो बुक है, 2 बुक है, एक एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स ले लेंगे। फर्स्ट HL आहूजा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव टाइम, प्लीज़ रीड हल आर वेरियन बुक। हल आर वेरियन बुक जस्ट चैप्टर 1 to 6, नॉट मोर देन दैट। चैप्टर 1 to 6 डिमांड तक आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसमें। हल आर वेरियन काफ़ी अच्छी किताब है, बट फॉर NTA CUET दैट बुक इज़, होल बुक इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, फ्यू चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए पिंडिक एंड रुवेल्फिन। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रेफर कोस्यानिस। कोस्यानिस इज़ वेरी गुड बुक, जस्ट you join the telegram link, all book you will be given freely, free PDF is there. Kostianis book also available, but you have to concretize the things, you have to be very specific, just follow HL Ahuja microeconomics and Pindick and Rubenful, the best book. That's it for microeconomics और past year paper. Past year paper is the key, the रामबाण। और प्रिपरेशन करने से पहले आप पास्ट ईयर को देखें कि पास्ट ईयर में क्या पूछा रहा है, व्हाट आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द कोर एरिया दे आर टचिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर यू विल गेट। और पास्ट ईयर में मैंने 3 चीज़ों को फोकस करना है, JNU, BHU, HCU, दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम CUET के पास्ट फ्यू ईयर्स के कर लेंगे क्वेश्चन। और प्रैक्टिस के लिए HCU, JNU, BHU के पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दीज पेपर आर अलाइंड विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर। DSE पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आती थी, दैट वाज वेरी मैथमेटिकल इन नेचर। वी विल हैव स्पेसिफिक वीडियो ऑन DSE एंड CUET, वेरी डिटेल्ड वीडियो, नो नीड टू वरी। तो चलो, ये हो गया बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बस 2 बुक का ध्यान रखना है। एक तो HL आहूजा रामबाण है, दैट इज द पेनेसियर। HL आहूजा से 80% मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऑल क्वेश्चंस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या डील करना है, सॉरी लेट्स कम बैक। माइक्रो में आपको जस्ट 2 या 3 चीज़ पढ़ना है। माइक्रो में एक कंज्यूमर थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे, कंज्यूमर थ्योरी में आपका सारा आ जाएगा, जितना भी है इंडिफरेंस कर्व वगैरह हो गया, डिमांड हो गए, सप्लाई हो गए, सरप्लस हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, वो हो गया कंज्यूमर थ्योरी। थर्ड आ गया आपका सेकंड आ गया प्रोड्यूसर थ्योरी, कॉस्ट फंक्शन वगैरह हो गया, आइसो क्वांट हो गया, आइसो कर्व हो गया, कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, क्या इक्वेशन रहता है, ये सारे आपको विथ डायग्राम देखना है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, जो भी है आपके
लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह में कहाँ कर्व इंक्लिनेशन पॉइंट हो रहा है, कहाँ वो मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट वगैरह आप देखेंगे। ये हो गया सारा कॉस्ट फंक्शन। थर्ड आ जाएगा आपका मार्केट। मार्केट में जस्ट 4 काइंड्स ऑफ मार्केट्स आपको पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में भी 4-5 डिवीजन है, वो एच.एल. आहूजा में क्लियरली दिया हुआ है, वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो माइक्रो के लिए एच.एल. आहूजा सफिशियंट है, पिंडी ग्रूवेनफील्ड से आप हेल्प ले सकते हैं। देन कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बुक बताया कि डॉर्नविस फिशर एंड एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा इज द बेस्ट बुक फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स और यू कैन रेफर डॉर्नविस फिशर। सम पीपल हैव ऑल्सो गॉट आइडिया इनटू एच.एल. झिंगन, दिस एम.एल. झिंगन और द्विवेदी। You can refer any Indian writer, but preference should be Indian writer book if you are preparing for CUET. What happens? Your professor will tell, no, these books are not good, these books are rubbish, don't follow Indian books, go through foreign writer books. It is okay, but you have to clear the exam. You have to be very, very specific. You need not to become professor first. You have to first clear the exam. अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, सारा नॉलेज रखा का रखा रह जाएगा। फिर 1 साल ड्रॉप होगा, फिर प्रिपरेशन होगा, फिर एंग्जाइटी आएगी, टेंशन आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं गाइज। तो फोकस शुड बी जस्ट क्लियर द एग्जाम। एग्जाम क्लियर कर लो, फिर आगे जो होगा करना। यूपीएससी करो, कुछ स्टेट पीसीएस का तैयारी करो, बैंकिंग का तैयारी करो, प्लेसमेंट का तैयारी करो, फॉरेन जाओ, नेट जीआरएफ करो, व्हाटसोएवर। फर्स्ट ट्राई टू गेट इनटू द good institute via cracking the entrance exam, not to gain the knowledge. Knowledge should be secondary when you are preparing for the exam. Does not mean if you are very knowledgeable you will get into the exam. That should be very sure. Third comes growth and development. Growth and development के लिए many books are there. AP Thilwal is there, Toderon Smith is there, Tanejan Mayer is there. But exam oriented एम.एल. झिंगन है। यस, एम.एल. झिंगन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके इंडेक्स में जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर को देखेंगे और ऊपर पढ़ लेंगे। जस्ट बेसिक्स क्वेश्चन दे आस्क कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है, लेविस मॉडल क्या कहती है, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है, बेसिक क्वेश्चन दे आस्क। जस्ट एम.एल. झिंगन उसके इंडेक्स से पढ़ लेंगे, पास्ट ईयर पेपर को अलाइन करके विच क्वेश्चन आर कमिंग। थर्ड डन। फोर्थ इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी का कुछ स्पेसिफिक वीडियोज में डालता रहूँगा और आप नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो उस पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। मैं कुछ पोस्ट वहाँ भी करता रहूँगा रिगार्डिंग CUET एंट्रेंस। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप दत्त सुंदरम को फॉलो नहीं करेंगे। येस, नो नीड टू फॉलो, वेरी हैवी बुक। उमा कपिला बुक नहीं फॉलो करेंगे, काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी कम समय है। पुरी एंड मिश्रा, और मिश्रा एंड पुरी की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ वेरी गुड बुक। इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू इवन दैट बुक यू कैन रेफर रमेश सिंह। रमेश सिंह बुक इज़ बेस्ट और यू कैन गो थ्रू मुन्नाल सर लेक्चर्स। मुन्नाल सर के भी लेक्चर काफ़ी अच्छे होते हैं। रमेश सिंह बेस्ट। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको वह वीडियो देख लेना है, दैट इज़ मोर देन एनफ। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसका समरी देख लेना है और रमेश सिंह, दैट इज़ द बेस्ट बुक। एक मैंने वीडियो डाल रखा है, हाउ टू टैकल इंडियन इकोनॉमिक्स, CUET 2022 के लिए डाला था। सेम वीडियो इज़ रिलेवेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। यह हो गया इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट। अब आ गया पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में मुसग्रेब आप पढ़ सकते हैं, आर.के. लेखी पढ़ सकते हैं, एच.एल. भाटिया पढ़ सकते हैं, एनीथिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उतना टाइम होगा आपके पास। तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस आप पढ़ लेंगे। इंडियन इकोनॉमी को भी मेनली 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। एक देख लेंगे फिस्कल सिस्टम और देख लेंगे मॉनेटरी सिस्टम। फिस्कल पॉलिसी में सारा चीज़ आ जाएगा, टैक्स वैक्स सारे कवर हो जाएंगे, गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स हो जाएंगे। लास्ट टाइम गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स पूछे गए थे, 5 ईयर प्लान्स हो जाएंगे, सारे प्लानिंग के कंपोनेंट हो जाएंगे, बजट हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। यह हो गया फिस्कल पॉलिसी। फिर इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेंगे, तो इसमें CRR, SLR, बैंकिंग का क्या रोल है, RBI का क्या रोल है, कैसे मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होता है। तो ये पूरा मॉनेटरी का कवर हो गया। इस तरह से आपका इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे नरसिम्हन कमेटी पूछा गया था, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी में, बैंकिंग रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे इंडियन इकोनॉमी को कवर कर देगा। और इंडियन पब्लिक फाइनेंस को आप एसोसिएट करके पढ़ेंगे। तो आपका पब्लिक फाइनेंस का काफ़ी छोटा टॉपिक है, उसको मुसग्रेब से, पास्ट ईयर पेपर से और सिलेबस से मिला के कवर कर लेंगे। दैट्स इट। लास्ट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। द बाइबिल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज सल्वाटोर। डोमिनिक सल्वाटोर पढ़ेंगे, वह भी स्पेसिफिक सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आऊँगा काफ़ी दिन, 1 महीने बाद, अगर नोटिफिकेशंस आ जाती है, एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है आई थिंक इन जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन मार्च में आ जाएगी। मार्च के एंड तक मैं एक डिटेल्ड वीडियो आऊँगा विथ बुक, किस बुक से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज 800-900 पेजेस का बुक है एंड यू कैन नॉट रीड ऑल द पेजेस एट ए टाइम, वेरी लेस टाइम। यार 100 डेज बचे हैं, टू बी सीरियस। 120 डेज कहने के हैं, 4 months आर लेफ्ट, जस्ट 100 डेज ऑलमोस्ट। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम भी देना है, यहाँ भी पढ़ना है, तो मैं समझ सकता हूँ। यू हैव टू बी वेरी पंचुअल। 2-3 घंटा डेली, 2 hours 3 hours, प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल गाइज। तो इंडियन इकोनॉमी वहाँ से कवर हो गया। सल्वाटोर, डोमिनिक सल्वाटोर बुक पढ़ लिया आप, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए या फिर स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स के लिए गुप्ता एंड कपूर हो गया स्टैटिस्टिक्स के लिए। और
अल्फा एंड चियांग, एसी चियांग हो गया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इवन अचल आहूजा, कोश्यानिस और पिंडिक रूबेनफील्ड में भी कुछ कुछ कवर्ड है जो थियोरेटिकल पोर्शन के अप्लाइड फॉर्म है, जैसे मार्केट्स के न्यूमेरिकल हो गए, अचल आहूजा में भी ISLM के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। नो नीड टू वरी। 5 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें रिजल्ट लाना है, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। इवन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 60 क्वेश्चंस, इफ़ योर 55 इज करेक्ट, दैट इज मोर देन एनफ। And people who are attempting 75 out of 70 and their 60 even is correct, तो if you get the negative marks they are lower than you। तो गैज यह था कुल मिला के बुक। अब अप्रोच कहाँ से करें, तो अप्रोच बस दो तरीका है, एक तो पास्ट ईयर पेपर को देखना है और एक हाथ में सिलेबस रखना है। पास्ट ईयर पेपर सिलेबस और बीच में आपके बुक्स रहेंगे, इन तीनों को मर्ज कर देना है, तो आपका कंप्लीट जो है कॉकटेल तैयार हो जाएगा और CUET 23 के लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। JNU, HCU, BHU एकदम आप रौंद दोगे, आई एम वेरी श्योर। और DSE को लेकर डरना नहीं है, प्रिपेयर फॉर द अपेक्स, यू विल गेट इनटू DSE। बट जो लोगों का मैथमेटिकल काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स सिलेबस में नहीं आ रही है, यस आप कन्फ्यूजन में ना आ रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CUET 23, बट इन DSE, इन एग्ज़ाम्स, इन मास्टर्स में जो सेमेस्टर होंगे, मास्टर्स के जो कोर्स होंगे सेमेस्टर वाइज, व्हेन यू गेट इनटू द मास्टर्स, देयर कोर्स इज वेरी डिफिकल्ट। इवन आई डिड माई मास्टर फ्रॉम SCU, इन माई बैच वन स्टूडेंट केम फ्रॉम DSE बिकॉज देयर ही डिड नॉट सर्वाइव, he could not survive there. It happens. DSE has around 332 seats, 232 seats, 1164 for their own student, reservation 50%, and 1164 for entrance examination. Out of that, every year 100 people drops DSE because they could not pass the exam. So you should be very much careful. आपको अपना चादर पता होना चाहिए, हमारे कितनी बड़ी चादर और हमारे कितना बड़ा पैर है। और इसके बाद आने के बाद आप RBI का तैयारी कर सकते हैं, DPR का तैयारी कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, प्लेसमेंट दे सकता है। HCU में 100% प्लेसमेंट है फॉर श्योर। लास्ट ईयर का जो बैच था 21, 22 वगैरह का, सभी को प्लेसमेंट मिला था और प्लेसमेंट का रेंज 6 लाख to 12 लाख था गैज। सो प्लीज़ नो नीड टू वरी, फर्स्ट यू फोकस ऑन PG में हो जाए आपका एडमिशन। वन वीडियो आई विल बी कमिंग कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए। सो फार 5-6 यूनिवर्सिटी आई हैव गिवन यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU पौंडीचेरी, गोखले, IGDIR, दीज आर अपेक्स इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपको जो भी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉक्सिमिटी, आपका घर से कितना नज़दीक है, आप वीमेन हैं, मेन है, किस तरह का वो सेफ्टी का माहौल है, कितना अफोर्डेबिलिटी है, ये सब आप कर सकते हैं। HCU में, जो मैं भी HCU में हूँ फॉर मोर देन 5 years, यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर हार्डली 3 months है फॉर PG कोर्सेज, हार्डली 3 month। तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आई थिंक आई कुड टैकल एवरीथिंग। यू प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव बिन कंसिस्टेंटली टेलिंग यू, टेलीग्राम जो ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करें। CUET का, PG का 23 का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बैच, हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा था। आई होप इट वॉज वेरी this video was very good to you, very fruitful to you, very useful to you. You please share it among your friends guys so that he or she could be benefited, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, ये बुक पढ़े जा रहे हैं, वो बुक पढ़े जा रहे हैं, यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कोचिंग जा रहे हैं, अभी तो DSE के नाम पे और भी कोचिंग खुलेंगे, हाउ टू गेट इनटू DSE via CUET। अरे भाई CUET ही ले रही है तो हाउ टू गेट इनटू DSE आप क्या कर रहे हो? जस्ट थिंक ऑफ यार, डोंट गेट फुल्ड, फोकस ऑन CUET। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ DSE पे फोकस करोगे, मैथमेटिकल सारा पढ़ के चले गए और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द एग्जाम हॉल थियोरेटिकल, वहाँ पे तुम क्या करोगे? वहाँ पे आप क्या करोगे बैठ के? जस्ट थिंक ऑफ, यू कैन नॉट रिमेंबर योर गॉड देयर। इसलिए बैलेंस लेके चलना है, थियोरेटिकल अप्रोच रखना है। ठीक है, DSE नहीं होगा, कुछ और होगा। अपार्ट फ्रॉम DSE, ऑल द CUET पेपर कंडक्टेड लास्ट ईयर वर थियोरेटिकल इन नेचर। तो अगर आप थियरी पे साउंड रहोगे, इफ़ योर थियरी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, यू विल गेट इनटू गुड इंस्टीट्यूट। बट इफ़ योर ओनली मैथमेटिकल इज़ वेरी स्ट्रांग, लेट मी बी कंप्लीट फर्स्ट, इफ़ योर ओनली मैथमेटिकल इज ओनली स्ट्रांग, नॉट नेसेसरली यू विल गेट इनटू अदर यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप DSE, JNU, HCU इन सब लेवल का प्रिपरेशन करते हो, उनके पास्ट ईयर को देखते हुए होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हो, तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट सम गुड इंस्टीट्यूशन। और जिनका ड्रॉप है वो तो अभी से लग जाएं। आई नो पीपल हु ज्वाइन HCU, JNU, DSE, आई हैव सीन एटलीस्ट 1/3 और 20% एटलीस्ट पीपल आर ड्रॉपर्स, 1 ईयर उनका बैक रहता है। तो आई फील रियली वेरी सॉरी फॉर देम कि उनको सही या तो गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या तो वो काफ़ी कम्प्लेक्सिटी में जी रहे थे, चीज़ों को काफ़ी कम्प्लेक्स कर दिए थे, चीज़ों को या तो काफ़ी लाइटली ले रहे थे। तो गाइज ये लोग अभी से आप
ना करें, यू प्लीज़ स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड यू प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल बी विथ यू टिल योर एग्जाम इज डन एंड योर रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. Definitely I will be teaching you, I will be guiding you, and I will be helping you at my best. I have experience of for last 7 to 8 years of studying economics, teaching economics, learning economics all together. And तो चलिए, यह लेक्चर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हो गया. आई हैव नेवर इंटेंडेड टू दिस वीडियो विल गो टिल 20 मिनट्स, बट दिस वाज नॉट माई एक्चुअली थिंक इतना लंबा जाएगा. तो एक बार हम शॉर्ट में 1 मिनट में समराइज़ कर देते हैं. 5-6 जो टॉपिक मैं बताया बस उसको जाना है. माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. इकोनॉमेट्रिक्स नहीं पढ़ना है. बुक्स भी मैं सबका बता दिया हूँ. उसके बाद आपको पास्ट ईयर इज द की है. पास्ट ईयर को हमेशा ध्यान में रखना है. डेली एटलीस्ट सॉल्व 10-20 क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम करंटली परस्यूइंग माई PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. हु इज़ इन द नीड यार? आई नो there is an information gap, people are not aware of it, people always googling, people always searching YouTube, अब ये क्या होगा, कैसे एग्जाम तैयारी करें, कैसे क्या करें. भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, जस्ट फॉलो. ओके. और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. आपको डेली पढ़ना है. डेली 2 आवर्स 3 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स डेली पढ़ें. और लास्ट 1 मंथ जो एग्जाम में है 8 to 10 आवर्स कर देंगे, आपका हो जाएगा. डेली रिवीजन पे ध्यान रखें. रिवीजन पे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो आज क्लासिकल्स पढ़ लिए, फिर केंसियन पढ़ लिए, फिर न्यू क्लासिकल पढ़ लिए, फिर न्यू केंसियन पढ़ लिए, किसी दिन ISLM पढ़ लिए, किसी दिन इन्फ्लेशन पढ़ लिए, हो गया कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स. हाउ सिंपल इट इज़. माइक्रो पढ़ना है, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ लिए, प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ लिए, मार्केट पढ़ लिए, कंप्लीट. और वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. छोटा सा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स है. पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वगैरह है और बर्गसन सैमुअल्सन वगैरह का थ्योरम है, एरोज थ्योरम है. तो आप लोग सिलेबस को देखें, पास्ट ईयर को देखें एंड अकॉर्डिंगली नोट इट डाउन. पास्ट ईयर में क्या आया है, जैसे SU का पास्ट ईयर है, BHU का पास्ट ईयर है, JNU का पास्ट ईयर है, CUCET का है. पास्ट ईयर में जो टॉपिक आया है, द टॉपिक विच केम इन द पास्ट ईयर, जस्ट यू सी एंड नोट इट डाउन ऑन द पेपर. दिस यू नो, ओके डन. दिस यू डोंट नो, ओके यू हैव टू मेक द नोट्स. एंड प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स गाइज. प्लीज डोंट इग्नोर द वैल्यू ऑफ शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यह था मेरा कहना. कीप मेकिंग शॉर्ट नोट्स बनाइए. लास्ट टाइम आपको वही रिवीजन करेगा. पास्ट ईयर करते रहें. टेस्ट सीरीज मार्केट में बिक रहे हैं, ज्वाइन है तो कीजिए, मन नहीं है तो नहीं ज्वाइन कीजिए. आई वुड से कि पास्ट ईयर आप कर लोगे यार, मतलब 100 टेस्ट तो वहीं हो जाएंगे. सपोज दैट 5 ईयर 10 ईयर्स के आप 6-7 इंस्टीट्यूट के किए, 6-7 यूनिवर्सिटी के किए, ऑल टुगेदर कितना हो गया, 50 सेट्स हो गए. व्हाई नीड ऑफ दिस. और थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए क्योंकि वो करंट सेक्शन ए में भी हेल्प करेगा, पार्ट ए में, और पार्ट बी के इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करेगा. लेट मी टेल यू द टॉप 3 जो NTA का है CUET के थ्रू. फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. यह 3 टॉपिक से लास्ट ईयर 50% क्वेश्चंस आए. एंड आई एम टेलिंग यू HL आहूजा से, ओनली HL आहूजा बुक से, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, नियरली 60% ऑफ ऑल क्वेश्चंस. HL आहूजा यार गजब का बुक मुझे लगता है. उसने सब कुछ कवर कर दिया है. इफ़ यू सी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी है इन दैट बुक. मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पब्लिक फाइनेंस भी है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. मॉनेटरी भी है, बैंकिंग भी है. तो HL आहूजा बुक को आप अच्छे से फॉलो करें. 60% ऑफ सिलेबस इज कैन बी डन विद HL आहूजा बुक. और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला है कि आप सर पर्टिकुलर बुक, मैं यही फॉलो करते आ रहा हूँ. हम लोग बोला जाता है कि जो भी आपके सीनियर्स किए हैं एंड हु बीन हैव डन वेल इन देयर फील्ड, तो आप उनको फॉलो करें. आई रिक्वेस्ट यू गाइज, दिस वीडियो वाज रियली फ्रूटफुल टू यू. आप इसको फॉलो करें. अपने आप को पैनिक ना है. आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा email ID दिया हुआ है. टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे. ज्वाइन करने के बाद वॉट एवर क्वेश्चंस यू विल आस्क इन द ग्रुप, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी देयर. आई विल बी रिप्लाइंग देयर. और यूट्यूब में भी कमेंट करने पे विदिन 24 आवर्स आई डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइज. तो आप अपना कल्याण करें, देश का कल्याण करें, और समाज का भी साथ में कल्याण हो ही जाएगा. आप अपना कल्याण करेंगे, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा. तो प्लीज़ यूटिलाइज द रिसोर्सेज. You should be very rational, you should be very optimum, cost minimization, profit maximization, utility maximization. These are our core principles of economics. So we have to learn economics in a connected way. Got it? तो चलिए, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, बट फिलोसफी काफ़ी लंबा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड. और कभी कभी मैं काफ़ी बुरा फील करता हूँ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन गैप. मैनी पीपल कुड नॉट ज्वाइन गुड इंस्टीट्यूशंस. 2 वीडियो आई विल बी कमिंग. एक तो CUET DSE को हम लोग करके देखेंगे कैसे क्या करना है. स्पेसिफिक अभी DSE का तैयारी नहीं करें, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक आप DSE का कर जाओगे तो थियरी पार्ट नहीं कवर कर पाओगे. बैलेंस करके चलें, थोड़ा थियरी करें, थोड़ा मैथमेटिकल करें, सो दैट
यू विल हैव सम बैलेंसिंग अप्रोच। और एक वीडियो मैं लेके आऊँगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में क्या सही है, कौन सा कोर्स रहेगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एसयू का कैसा है, जनरल इकोनॉमिक्स कैसा है, एसयू का प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ क्या कितना खर्चा है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आई विल बी कमिंग फ्रॉम मार्च। तो स्टे ट्यून गाइज। किसी प्रकार का अगर मुझसे गलती हुआ होगा प्लीज़ लेट मी नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड एरर इज ऑब्वियस टू अस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो और मैं अपनी गलती से सुधारूंगा, सीखूंगा। और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको किस तरह के वीडियोज़ और चाहिए रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी नेट JRF का भी एग्जामिनेशन है मार्च में। तो आई विल बी मेकिंग वीडियो अकॉर्डिंगली। लेट्स मेक ए फैमिली ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट्स ज्वाइन एंड लेट्स क्रैक इट CUET। तो चलिए नीचे जाइए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। सारे बुक्स फ्री में अवेलेबल हैं, फ्री में, ऑल बुक्स, नो नीड टू बाय। पीपल हु आर यूज टू विथ सॉफ्ट कॉपी, तो आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन परचेज इन द मार्केट। और अपने दोस्त के साथ शेयर करें वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का हो गया, बट आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल टू यू। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो टॉपिक में बोला हूँ बस वही टॉपिक को कवर करें और चीज़ों को कम्प्लेक्स ना करें। ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ क्लास जा रहे हैं, नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सेल्फ स्टडी इज़ द की। ग्रुप ज्वाइन करें, इन्फॉर्म रहें, अवेयर रहें, लोगों को भी इन्फॉर्म करें और ग्रुप में पढ़ें। 3-4 लोग पढ़ लें, जस्ट ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, 2-3 लोगों का ग्रुप पढ़ें, डिस्कशन करें, सब हो जाएगा। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।